Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 27. We are studying chapter number 4, Measures of Dispersion. Today our topic is moments. The word moment is a familiar mechanical term used in physics which refers to rotating effect of a force. But in statistics, the first four moments describe the various characteristics of a frequency distribution. The first moment about zero or origin is the arithmetic mean. The second moment about mean is the variance, and its positive square root is the standard deviation. The third moment about mean is a measure of skewness, while the fourth moment about mean is used to measure the kurtosis, that is the shape of the distribution. How we define moments? A moment designates the power to which deviations are raised before averaging them. Or moments are defined as the arithmetic mean of the different powers of deviations taken from actual mean of the given data, any assumed mean, or zero. If we take deviations from actual mean of the given data, we will get moments about mean. If deviations are taken from any assumed mean, we will get moments about assumed mean. Similarly, if we take deviations from zero, we will get moments about zero or origin. The moments about assumed mean or zero are also known as raw moments, while moments about mean as central moments. The moments are denoted by the symbol mu or m. Moments are certain parameters which are used for testing the symmetry and normality of a distribution. With the help of this flow chart, you can understand the types of moments properly. There are two types of moments. Moments about provisional mean or an arbitrary origin. These are also called raw moments. And second one is moments about arithmetic mean, and these are called central moments. Moments about provisional mean or raw moments for population data, these are denoted by mu1 prime, mu2 prime, mu3 prime, and mu4 prime. And for sample data, m1 prime, m2 prime, m3 prime, and m4 prime. And moments about arithmetic mean or central moments for population data, these are denoted by mu1, mu2, mu3, and mu4. Or for sample data, m1, m2, m3, and m4. Now, computational formulas. First one is moments about provisional mean for ungrouped data. M1 prime is equal to summation x minus a divided by n. As we know that x minus a is equal to d. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं it is equal to summation d divided by n. And in coding method, these are written as summation u divided by n into h. m2 prime is equal to summation x minus a whole square divided by n, and it is written as summation d square divided by n, and it is also equal to summation u square divided by n into h square. m3 prime is equal to summation x minus a whole cube divided by n minus summation d cube divided by n, and it is also equal to summation u cube divided by n into h cube.
m4 prime is equal to summation x minus a whole raised to power 4 divided by n, and it is equal to summation d raised to power 4 divided by n, and it is also equal to summation u raised to power 4 divided by n into h raised to power 4. Now formulas for group data. M1 prime is equal to summation f into x minus a divided by summation f, and it is also equal to summation fd divided by summation f, and it is equal to summation fu divided by summation f into h. M2 prime is equal to summation f into x minus a whole square divided by summation f, and it is equal to summation ft square divided by summation f, and it is also equal to summation fu square divided by summation f into h square. M3 prime is equal to summation f into x minus a whole cube divided by summation f, and it is also equal to summation ft cube divided by summation f, and in coding method it is also written as summation fu cube divided by summation f into h cube. M4 prime is equal to summation f into x minus a whole raised to power 4 divided by summation f. It is equal to summation fd raised to power 4 divided by summation f, and it is equal to summation fu raised to power 4 divided by summation f into h raised to power 4. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अनग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी और ग्रुप डाटा में हम इसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे. Now the second one is moments about origin or zero. The formulas for ungrouped data. M1 prime is equal to summation x minus 0 divided by n, and it is equal to summation x divided by n, and it is also equal to mean. As we know that mean for ungrouped data, it is equal to summation x divided by n. M2 prime is equal to summation x minus 0 whole square divided by n, and it is equal to summation x square by n. M3 prime is equal to summation x minus 0 whole cube divided by n, and it is equal to summation x cube divided by n. M4 prime is equal to summation x minus 0 whole raised to power 4 divided by n, and it is equal to summation x raised to power 4 divided by n. Now the formulas for group data. M1 prime is equal to summation f into x minus 0 divided by summation f, and it is equal to summation fx divided by summation f, and it is also equal to mean for group data. M2 prime is equal to summation f into x minus 0 whole square divided by summation f is equal to summation fx square divided by summation f. M3 prime is equal to summation f into x minus 0 whole cube divided by summation f, and it is equal to summation fx cube divided by summation f. M4 prime is equal to summation f into x minus 0 whole raised to power 4 divided by summation f, and it is equal to summation fx raised to power 4 divided by summation f. The third one is moments about mean. The formulas for ungrouped data. Ungrouped data में frequency involve नहीं होती और group data में frequency involve होती है. ठीक है, ये आपको पता है. M1 is equal to, अब इसमें प्राइम नहीं होगा. ठीक है, मोमेंट्स अबाउट मीन को हम ऊपर प्राइम नहीं लिखते, हम M1, M2, M3 और M4 से हम इसको डिनोट करते हैं, ये आपको पता है. M1 is equal to summation x minus x bar divided by n, and it is equal to summation d divided by n, where sum of deviations taken from mean is also equal to 0. आपने मीन की प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा है, तो इसलिए M1 जो है फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0.
m2 is equal to summation x minus x bar whole square divided by n, and it is written as summation d square by n, and it is equal to s square. S square is the variance. The second moment about mean is equal to the variance. m3 is equal to summation x minus x bar whole cube divided by n, and it is written as summation d cube divided by n. m4 is equal to summation x minus x bar whole raised to power 4 divided by n, and it is written as summation d raised to power 4 divided by n. Formulas for group data. m1 is equal to summation f into x minus x bar divided by summation fd divided by summation f, it is equal to 0. जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0. अब फर्क सिर्फ ये है कि अनग्रुप डाटा में आप फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होती और ग्रुप डाटा में आपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी. ठीक है. m2 is equal to the second moment about mean summation f into x minus x bar whole square divided by summation f, and it is equal to summation f d square divided by summation f, and it is equal to variance s square. The third moment about mean is equal to m3 is equal to summation f into x minus x bar whole cube divided by summation f, and it is written as summation f d cube divided by summation f. The fourth moment about mean m4 is equal to summation f into x minus x bar whole raised to power 4 divided by summation f, and it is written as summation f d raised to power 4 divided by summation f. ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं. ठीक है. मोमेंट्स अबाउट आपने पहले क्या पढ़ा? मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी पढ़ा, मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो भी पढ़ा, और कौन से पढ़ा? फर्स्ट जो है आपने मोमेंट्स अबाउट प्रोविजनल मीन आपने पढ़ा, फिर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, और फिर थर्ड पे है मोमेंट्स अबाउट मीन. Relationship between mean and moments about provisional mean. Moments about mean and moments about provisional mean. ठीक है. इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? If the mean is a fractional value, then it becomes a difficult task to work out the moments about the mean. In such cases, we can compute moments about provisional mean and then change it into moments about the arithmetic mean by the following relationships. And these relationships are m1 is equal to, m1 क्या है? moments about mean है, and it is equal to m1 prime minus m1 prime. m1 क्या है? These are the moments about provisional mean. m1 prime first moment about provisional mean, m1 prime minus m1 prime, and it is equal to 0. m2 is equal to m2 prime minus m1 prime square, and it is equal to variance. m3 is equal to, m3 is the third moment about mean, and it is equal to m3 prime minus 3m1 prime m2 prime plus 2m1 prime cube. ठीक है. तो इसमें m4 जो है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, इट इज इक्वल टू m4 प्राइम माइनस 4m1 प्राइम m3 प्राइम प्लस 6m1 प्राइम स्क्वायर m2 प्राइम माइनस 3m1 प्राइम रेज़्ड टू पावर 4. And this is the general term. mr prime is equal to mr plus r mr minus 1 m1 prime plus r into r minus 1 divided by 2 factorial into mr minus 2 m1 prime square plus r into r minus 1 r minus 2 divided by 3 factorial mr minus 3 m1 prime cube plus so on plus m1 prime raised to power r. This is the general term. Now moment ratio. The most commonly moment ratios are b1 is equal to beta 1,
is equal to m3 square divided by m2 cube. B1 or beta 1 is the measure of symmetry. If B or B1 or beta 1 is equal to 0, then the distribution is symmetrical, otherwise it is skewed. B2 is equal to beta 2 is equal to M4 divided by M2 square, and it is equal to M4 divided by S square and S square whole square. ठीक है, एस स्क्र m2 जो है, जैसा कि हम जानते हैं m2 जो है वो हमने कहा कि वेरिएंस के इक्वल है. सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज वेरिएंस, और वेरिएंस क्या है, एस स्क्र है. तो एस स्क्र हमने उसकी जगह लिख दिया, और m2 का स्क्र है चूंकि, तो फिर उसका स्क्र आ जाएगा. ठीक है, हम b2 से भी इसको डिनोट करते हैं और बीटा 2 से भी करते हैं. इसी तरह से जो फर्स्ट आपका मोमेंट रेशो है वो b1 से भी उसको हम डिनोट करते हैं, बीटा 1 से भी करते हैं. अगर बीटा 1 लिखा हो तो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये सिमेट्री आपने बतानी है और ये B1 ही है, या B1 लिखा हो तो बीटा 1 एक ही चीज़ है. ठीक है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. B2 or beta 2 is used to explain the shape of the curve and is the measure of normality. If B2 or beta 2 is equal to 3, then the distribution is normal, otherwise non-normal. These moment ratios are independent of origin and units of measurement. They are pure numbers. Corrected moments or Shepard correction. Shepard correction only used for group data of equal class intervals. Calculating the central moments for a frequency distribution, it is assumed that all the values or frequencies are concentrated at the midpoints of each class. This assumption is not actually true. Certain errors called grouping errors are introduced in even order moments. W. F. Shepard suggested that if the distribution is continuous and tail off to 0, then the corrections for second and fourth central moments are m2 corrected is equal to m2 minus s square by 12, and it is equal to s square corrected. M4 corrected is equal to M4 minus h square by 2 M2 plus 7 divided by 240 into h raised to power 4. These corrections are not applicable for unequal class interval size and highly skewed distributions. Now, importance of moments. It is known fact that statistics is divided into two kinds, descriptive statistics and inferential statistics. Moments are the only concept in whole of the statistics which belongs to both descriptive as well as inferential statistics. Now the point arises that what way moments are descriptive or inferential. To understand this, let us consider the following. First moment about origin is equal to summation x divided by n is equal to x bar, and it is arithmetic mean. The second moment about mean, as we know, it is equal to summation x minus x bar whole square by n, and it is equal to variance. Coefficient of skewness, it is equal to b1. कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस b1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब. एंड कोफिशेंट ऑफ कर्टसेस, इट इज इक्वल टू b2 and it is equal to μ4 divided by μ2 square. So far we have discussed four characteristics. First, the measures of central tendency. Second, the measures of dispersion. The third one, measures of central tendency कौन सा है, जो कि मीन है ना, mean is the measures of central tendency. Second one is variance. Variance is the measures of dispersion. Third one is measures of skewness, and fourth one is measures of kurtosis. The example is 4.33
from your book on page 176. Find first 4 moments about the mean. ये हमने फाइंड करने हैं और डाटा हमारे पास है, मार्क्स हैं 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 एंड सो ऑन. द लास्ट क्लास इज 50 to 54. ठीक है, और कोरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जो कि इक्वल है 1, 4, 8, 11, 15, 9 एंड 2. द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50. मोमेंट्स अबाउट मीन हमने फाइंड करना है. अब आपकी मर्जी है, आप ये वाला फार्मूला लगाएं या आप उसको रिलेशनशिप के फार्मूलों से फाइंड करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी है. ठीक है, तो मीन का, मोमेंट्स अबाउट मीन का भी आपने फार्मूला पढ़ा. वो फर्स्ट किसके इक्वल है, m1 is equal to summation f into x minus x bar डिवाइडेड बाय summation f जो कि इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x बार चाहिए. तो x बार हम कैसे फाइंड करेंगे, fx से. ठीक है, fx से आप x बार फाइंड करें. fx का जो सम है वो हमारे पास 1950 आ रहा है. यहाँ पे मैंने fx का कॉलम आपको नहीं बताया, x भी है आपके पास, f भी है. दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो fx का कॉलम आ जाएगा और उसका सम आपके पास आ रहा है 1950 डिवाइडेड बाय समेशन f है आपके पास 50, x बार आपके पास आ जाएगा 39. अब फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमें पता है इक्वल टू 0 होता है, तो वो हम डायरेक्ट उसको 0 लिख देंगे. ठीक है, अब कॉलम फाइंड कौन कौन से करेंगे, x माइनस एक्स बार का, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्यूब, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4. ठीक है, हमें ये चाहिए कॉलम. अब आपने x माइनस एक्स बार का कॉलम फाइंड किया. पहली x की वैल्यू क्या है आपके पास, x क्या चीज़ है, x आपका मिड पॉइंट्स हैं जो कि आपके 2 लिमिट्स के मीन लेने से आए हैं. ठीक है, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास फर्स्ट x की वैल्यू 22 आ गई. ठीक है, इसी तरह से 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 ये आपके पास x की सेकेंड वैल्यू 27 आ गई एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब फर्स्ट वैल्यू x की आपके पास 22 है. 22 माइनस मीन आपके पास है 39. तो 22 में से 39 जब माइनस करते हैं तो आपके पास -17 आपके पास ही आ जाएगा. साथ ही आप दूसरा कॉलम भी फाइंड करते जाएं, उसको फ्रीक्वेंसी से -17 को कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है. तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार में फर्स्ट वैल्यू भी -17 आ जाएगी. अब नेक्स्ट x की वैल्यू 27 है, तो 27 माइनस 39 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -12 और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4. तो 12 4 सा 48, -48 आपकी नेक्स्ट कॉलम में भी वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका है 32 है, x 32 माइनस 39 ये आपके पास -7 वैल्यू आ जाएगी और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 8 है, तो -56 आ जाएगा. इसी तरह से आपने ये कॉलम फाइंड करना है. नेक्स्ट कॉलम है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. अब आपके पास जो कॉलम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x माइनस एक्स बार का जो आपने कॉलम फाइंड किया, इसके स्क्वायर करते जाएंगे और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे फर्स्ट वैल्यू इसमें है -17 का आप स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 289. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई. फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू x माइनस एक्स बार में कौन सी है, -12 है, तो -12 का आप स्क्वायर लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई 576. अब आपकी x की नेक्स्ट वैल्यू है x माइनस एक्स बार की -7. ठीक है, 7 7 49, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 8, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 392 आ जाएगा. इसी तरह से x माइनस एक्स बार की हर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. नेक्स्ट जो कॉलम है जो कि आप फाइंड करेंगे वो है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्यूब.
यानी x माइनस एक्स बार जो कॉलम है इसका आप क्यूब करते जाएंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -17 है, इसका क्यूब लेंगे और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -12 का क्यूब लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये पूरा कॉलम आ जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्यूब। अब नेक्स्ट जो कॉलम आपको चाहिए वो है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार रेज टू पावर 4। आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार के कॉलम का पावर 4 लेते जानी है और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे -17 है, फर्स्ट वैल्यू उसकी पावर 4 कर लें और फिर 1 से मल्टीप्लाई करें। फिर -12 है नेक्स्ट वैल्यू, उसकी पावर 4 और फिर कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 है, उससे मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह से -7 है, उसकी पावर 4 और फिर कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 8 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है -2, उसकी पावर 4 ले लें और कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 11 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरा कॉलम जो है आप फाइंड कर लेंगे। आपके पास इन कॉलम्स के आप सम कर लेंगे। जो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर का सम है ये आपके पास 2350 आ रहा है। f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर का जो सम है ये आपके पास आ रहा है -5250 और f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेज टू पावर 4 का जो सम आ रहा है वो है 281050। अब आपने मोमेंट्स के फार्मूलाज में इन सम्स को पुट करना है तो आपके पास मोमेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट मोमेंट इक्वल टू 0 होता है, सेकेंड मोमेंट में आप ये सम पुट करें तो आपके पास m2 आ जाएगा 47। m3 की वैल्यू में जब इस फार्मूले में m3 के आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास m3 आ गया -105 और लास्ट जो मोमेंट है m4 वो आपके पास वैल्यूज पुट करने से आ गया 5621। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.34। ठीक है, इसमें भी आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड करने हैं अबाउट मीन। तो इसको मैं नेक्स्ट मेथड से आपको डी वाले मेथड से करके बता रही हूँ कि पहले जो है वो आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करें और फिर उन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन से मोमेंट अबाउट मीन आप फाइंड करें। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। आपने जो पिछला मेथड किया मैं आपको डिफरेंट मेथड से ये अब बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर मोमेंट्स अबाउट मीन अगर आपसे कहा गया है तो डायरेक्ट आप ये जो फर्स्ट मैंने मेथड बताया है आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करें फिर मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करें, तो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करें और मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो रिलेशनशिप के जो आपने फार्मूले पढ़े हैं उसमें उससे आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको इससे बता रही हूँ। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का फार्मूला जो है वो आपने पढ़े, m1 प्राइम जो है वो इक्वल होता है समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन के और m2 प्राइम इक्वल है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, n इज इक्वल टू समेशन एफ और m3 प्राइम जो है वो आपके पास समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ के इक्वल है और m4 प्राइम जो है ये समेशन एफ डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपके पास ये डिस्क्रीट डाटा है, x भी है आपके पास और f भी है। आपको सबसे पहले चाहिए d का कॉलम, d चाहिए। d किसके इक्वल होता है, x माइनस a के। a क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, या तो मिड वैल्यू लेते हैं या अगर इवन डाटा है तो दरमियान की दो वैल्यूज का मीन ले लेते हैं। यहाँ मैंने 36 एज एज्यूम मीन यहाँ पे लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट x की वैल्यू है आपके पास 31 में से आपने 36 को माइनस किया तो आपके पास फर्स्ट d की वैल्यू -5 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 32 में से 36 को माइनस किया तो आपके पास d की नेक्स्ट वैल्यू आ गई -4 और इस तरह से आपने d का कॉलम जो है फाइंड कर लिया। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 आ रहा है। अब आपने इस d के कॉलम को f के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो f d का कॉलम आ जाएगा और फिर d का कॉलम
कॉलम का स्क्वायर लेंगे और f के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू 1, 4 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर इंटू 8, ये आपके पास एफ डी स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जो आपने फाइंड करना है वो है एफ डी क्यूब, यानी डी के कॉलम का आप क्यूब देते जाएंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह से एफ डी 4 का कॉलम नेक्स्ट आपने फाइंड करना है। डी के कॉलम का आप 4 उसकी पावर लेते जाएंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास जो है ये कॉलम आ जाएंगे, इनके सम आपने लेने हैं और यहाँ पे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के जो फार्मूले हैं उसमें आपने ये वैल्यूज पुट करनी है सम, तो आपके पास मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ जाएंगे। ठीक है, m1 प्राइम समेशन एफ डी आपके पास -40 आ रहा है और समेशन एफ है 40, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। m2 प्राइम जो है ये इक्वल है समेशन एफ डी स्क्वायर ओवर समेशन एफ के, तो एफ समेशन एफ डी स्क्वायर आपके पास 154 आ रहा है और समेशन एफ 40 है, तो ये आपके पास m2 प्राइम जो है ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3.85। m3 प्राइम जो है ये आपके पास इक्वल है समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ के। अब समेशन एफ डी क्यूब आपके पास आ रहा है -388 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज इक्वल टू 40, तो m3 प्राइम आपके पास आ गया -9.7। इसी तरह से फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन ये इक्वल है समेशन एफ डी रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ के, और समेशन एफ डी रेस्ट पावर 4 का जो सम आ रहा है वो है 1714 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 40, तो m4 प्राइम आपके पास आ जाएगा 42.85। अब ये तो आपने फाइंड कर ली मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा गया है, आपसे मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने को कहा गया है। तो आप इन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को यूज करके आप मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करेंगे। आपने अभी रिलेशनशिप के फार्मूले पीछे देखे हैं, m1 किसके इक्वल है, m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम जो कि इक्वल टू 0 है। m2 जो है वो किसके इक्वल है, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर, और इसमें जब वैल्यू m2 प्राइम की है 3.85 माइनस m1 प्राइम जो है ये -1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो m2 आपके पास आ जाएगा 2.85। m3 प्राइम का फार्मूला है m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम रेज़ टू पावर 3। ठीक है, इसमें अब हमने वैल्यूज जो हैं m3 प्राइम की वैल्यू है -9.7, वो हमने पुट की, -3 इंटू m2 प्राइम की वैल्यू पुट की, m1 प्राइम की वैल्यू पुट की, इसी तरह से +2 इंटू m1 प्राइम -1 है उसकी पावर 3 आ जाएगा, और सारे को सॉल्व करने के बाद m3 हमारे पास आ रहा है -0.15 के। m4 जो है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, इसका फार्मूला है हमारे पास m4 प्राइम -4m3 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6m2 प्राइम m1 प्राइम स्क्वायर -3m1 प्राइम रेज़ टू पावर 4। इसमें भी जो वैल्यूज हैं m4 प्राइम की, m3 प्राइम, m1 प्राइम की, इस तरह से m2 प्राइम और m1 प्राइम का वैल्यू ये हम सारी इसमें पुट करने के बाद हमारे पास m4 आ रहा है 24.15। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4.35, इसका 4.35 एग्जांपल है। इसमें भी हमने मोमेंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन, अबाउट ए इज इक्वल टू 164.5 एंड अबाउट मी, यानी दोनों के मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी फाइंड करनी है और मोमेंट्स अबाउट मीन भी फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसमें वेट्स हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 110 to 119, 122, ये पीछे से ये क्वेश्चन एक आ रहा है, इस पे हमने काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं पीछे भी। ठीक है, आज हम मोमेंट्स इससे कैलकुलेट करेंगे। 110 to 119, 120 to 129, 130 to 139 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1
4, 17, 28, 25, 18, 13, 6, 5, 2 एंड 1. सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 120. सबसे पहले हम इससे x कैलकुलेट करेंगे. x क्या है? दीज आर मिड पॉइंट्स. ये हम पीछे भी कैलकुलेट कर चुके हैं. 110 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास फर्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा 114.5. 120 प्लस 129 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 124.5 एंड सो ऑन. अब हमने इस पे मैंने u का फार्मूला जो है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के लिए, वो मैंने आपको अप्लाई करके बताया है. ठीक है, मुख्तलिफ मेथड से आपको बता दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि सारे मेथड्स किस तरह से अप्लाई करेंगे. फार्मूलाज आपने पीछे देख ली हैं. ठीक है, अब u हमें फाइंड करना है. तो u किसके इक्वल होता है? x माइनस ए ओवर h के इक्वल होता है. तो यहाँ पे a जो है वो हमारे पास है, उसने खुद बता दिया हुआ है क्वेश्चन में 164.5. ठीक है, और h यहाँ पे है 10 का डिफरेंस है. क्लास इंटरवल साइज क्या है? 10 है. तो इससे हम u का कॉलम फाइंड करेंगे. x की फर्स्ट वैल्यू है 114 माइनस 164.5 डिवाइडेड बाय 10. ये फर्स्ट u की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी. नेक्स्ट वैल्यू है 124.5 माइनस 164.5 डिवाइडेड बाय 10. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4. इस तरह से पूरा हम u का कॉलम फाइंड कर लेंगे. अब इस u के कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो fu आ जाएगा. फिर u के कॉलम का स्क्वायर लेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fu स्क्वायर आ जाएगा. फिर u के कॉलम का क्यूब लेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fu क्यूब आ जाएगा. फिर u के कॉलम का पावर 4 लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास fu रेज टू पावर 4 आ जाएगा. अब हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, और ओरिजिन क्या है? हमारे पास 164.5 है. ठीक है, उससे हमने फाइंड करनी है. m1 प्राइम इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच. अब इसमें समेशन एफ यू हमारे पास 100 आ रहा है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ 120 है और एच हमारे पास 10 है. तो ये हमारी फर्स्ट m1 प्राइम आ जाएगा -8.33. फिर हमने m2 प्राइम फाइंड करना है. समेशन एफ यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच स्क्वायर. ठीक है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे. इसमें हम सम पुट करेंगे. हमारे पास जो समेशन आया है, समेशन एफ यू स्क्वायर वो है 518 और समेशन एफ 120 है और 10 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये वैल्यू आ जाएगी 431.67. m3 प्राइम हम फाइंड करेंगे. उसका फार्मूला है समेशन एफ यू क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच क्यूब. ठीक है, अब समेशन एफ यू क्यूब हमारे पास -640 आ रहा है. समेशन एफ है 120 और 10 की पावर 3. तो m3 प्राइम हमारे पास आ जाएगा -333.33. इस तरह से फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन हम फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल है समेशन एफ यू रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू एच रेज टू पावर 4. समेशन एफ यू 4 हमारे पास आ रहा है 5150. वो हम वैल्यू पुट करेंगे और समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 120 है और 10 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास m4 प्राइम का आंसर आ जाएगा. अब हमने इन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन से नेक्स्ट उसने मोमेंट अबाउट मीन हमसे फाइंड करने को कहा है. तो हम मोमेंट अबाउट मीन इन्हीं मोमेंट अबाउट ओरिजिन से फाइंड कर लेंगे रिलेशनशिप के फार्मूले से. ठीक है, जो कि आपने पीछे किया है. जैसे कि हमें पता है m1 जो है वो m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम और वो इक्वल टू 0 होता है, और m2 जो है वो m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर है. इसमें m2 प्राइम की वैल्यू पुट की, m1 प्राइम की वैल्यू पुट की और उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास m2 आ गया, जो कि वेरिएंस के इक्वल होता है. थर्ड मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास m3 प्राइम माइनस m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम क्यूब. इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन आ गया. फिर फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हमने इस रिलेशनशिप के फार्मूले से जो है वो फाइंड कर लिया. आल्सो अप्लाई शेपर्ड करेक्शन. अब ये भी उसने कहा कि इस पे शेपर्ड करेक्शन भी आप अप्लाई करें. ठीक है, तो शेपर्ड करेक्शन क्या होगा? करेक्टेड m2 क्या होगा? इट इज इक्वल टू m2 माइनस h स्क्वायर बाय 12. ठीक है, h स्क्वायर बाय 12 के इक्वल है ये. और इसकी m2 की वैल्यू क्या है? 362.28. सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन माइनस h हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 है.
ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 और ये वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। फिर करेक्टेड M4 हमने फाइंड करना है जो कि इक्वल है, उसका फार्मूला क्या है, M4 माइनस एच स्क्वेयर बाय 2 M2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 240 H रेज टू पावर 4, एच स्क्वेयर बाय 12 है यहाँ पे, ठीक है, एच स्क्वेयर बाय 12। ये उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M4 करेक्टेड आ जाएगा, ठीक है, M4 करेक्टेड हम इस से फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.19 पार्ट बी, calculate the first 4 moments about the origin 10 and the mean for the following data। वैल्यूज हैं 5, 6, 7 डेली वेजेस इन रुपीज, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और नंबर ऑफ मैन फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 2, 5, 10, 20, 51, 22, 11, 5, 3 एंड 1। हमने मोमेंट्स अबाउट 10 ओरिजिन, ठीक है, वो फाइंड करने और फिर मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने। अब दोनों इसमें आपसे कहा गया है तो आपने कोई भी फार्मूला मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का, आप इसमें क्या फार्मूले आपने पढ़े हैं, M1 प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और M2 प्राइम किसके इक्वल है, समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ठीक है। अब इसी के मुताबिक हमने कॉलम्स जो हैं वो फाइंड करने होंगे। अब सबसे पहले हमें डी चाहिए, डी किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के। ए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, अबाउट 10, यही कहा हुआ है ना, ओरिजिन 10, तो ए क्या है यहाँ पे 10 है। तो हर x की वैल्यू में को 10 में उसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का कॉलम। जैसे फर्स्ट वैल्यू है 5, 5 माइनस 10, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी -5। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू है 6, 6 माइनस 10 -4, 7 माइनस 10 -3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास डी का कॉलम आ जाएगा। फिर एफ के कॉलम से डी के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी का कॉलम आ जाएगा और डी का कॉलम का स्क्वायर लेते जाएंगे और एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। फिर डी के कॉलम का क्यूब लेंगे और उसको एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी क्यूब का कॉलम आ जाएगा। फिर डी के कॉलम की पावर 4 लेंगे, ठीक है, जैसे -5 है उसकी पावर 4 ले लेंगे और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ डी रेज टू पावर 4 का कॉलम आपके पास आ जाएगा। फिर हर एक कॉलम का आपने सम लेना है। समेशन एफ जो है वो 131 आ रहा है। फिर M1 प्राइम का फार्मूला क्या है आपके पास, मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 10 या मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आपने फाइंड करना है। M1 प्राइम इक्वल है समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ के। समेशन एफ डी का सम है आपके पास 8 और समेशन एफ है 131, तो ये आपके पास M1 प्राइम आ जाएगा 0.06। इसी तरह से M2 प्राइम आपने फाइंड करना है जो कि इक्वल है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ के, और समेशन एफ डी स्क्वायर का सम है आपके पास 346 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 131, ठीक है। तो आपके पास M2 प्राइम आ जाएगा 2.64। फिर M3 प्राइम आपने फाइंड करना है समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ डी क्यूब आपके पास आ रहा है 74, समेशन एफ 131, तो ये M3 प्राइम 0.56 आ जाएगा। फिर M4 प्राइम आपने फाइंड करना है, फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन 10, ठीक है ना, समेशन एफ डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और समेशन एफ डी रेज टू पावर 4 इस आपके पास आ रहा है 3718 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 131, तो M4 प्राइम आ गया 28.38। अब आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने हैं फ्रॉम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है, रिलेशनशिप के फार्मूला से। M1 आपको पता है इक्वल होता है M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम और ये इक्वल टू 0 होता है। M2 जो है ये आपका वेरिएंस के इक्वल होता है और इसका फार्मूला है M2 प्राइम माइनस M1 प्राइम स्क्वायर। M2 प्राइम की जो आपके पास वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो है 2.64 और M1 प्राइम है 0.06, उसका स्क्वायर ले लेंगे तो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड मोमेंट अबाउट मीन आपने वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करना है। ये फार्मूलाज आपने रिलेशनशिप के याद करने होंगे, ठीक है। M4 प्राइम जो है
इसमें आपने M4 जो है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आप फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की, और इससे आपके पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 4.19 और इसका ए पार्ट है फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन 19 एंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 10, 12, 15, 19, 20, 22 एंड 25। आल्सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसमें भी आपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करने हैं, उसी अनग्रुप डाटा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके पास। आपने समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन M2 प्राइम इसके इक्वल होगा। अनग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूलाज है वो आपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का लगाना है। आपने डी का कॉलम फाइंड करना है और समेशन डी आपके पास -10 आ रहा है, एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि 7 हैं, उस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास M1 प्राइम आ जाएगा। ए आपको बताया हुआ है, ए है यहाँ पे ओरिजिन 19, ठीक है। M2 प्राइम इसी से आप फाइंड करेंगे, M3 प्राइम, फिर M4 प्राइम। आपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड कर लिए। अब आपने उन्हीं मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन से आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करनी है, ठीक है। रिलेशनशिप के फार्मूला आप लगाएंगे और उससे आपने मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो फाइंड कर लेने। आपको पता है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो 0 होता है और सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो आपका वेरियंस के इक्वल होता है। तो वो आपकी वैल्यू आ रही है M2 की 25.388। इसी का आप अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा। फिर आपने M3 आपने फाइंड करना है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, फिर फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। अब उसने कहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, S डिवाइडेड बाई x बार इंटू 100। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ से सेकेंड मोमेंट से आपने फाइंड कर दिया। अब आपको चाहिए x बार, तो x बार आपका इक्वल होता है M1 प्राइम प्लस ए के, ठीक है। M1 प्राइम प्लस ए के, या इसको आप लिख सकते हैं A प्लस M1 प्राइम। तो A प्लस M1 प्राइम किसके इक्वल होता है, समेशन D ओवर N के इक्वल होता है कि नहीं होता। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि x बार जो है वो किसके इक्वल है, A प्लस M1 प्राइम। और M1 प्राइम किसके इक्वल है, समेशन D डिवाइडेड बाई N के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x बार आ रहा है 17.57। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की और मीन की, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है 30.68। क्वेश्चन है 4.21, ए पार्ट है एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मीन वेरिएंस B1 एंड B2 एंड इसमें देखें पहले है द फॉलोइंग सम्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएट x आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशंस x इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, ठीक है। और ये सम्स हमें गिवन है। समेशन f है 125, समेशन f u इज इक्वल टू -45, समेशन f u स्क्वायर इज इक्वल टू 306, summation fu cube is equal to -240 and summation fu raised power 4 is equal to 1962. Calculate the mean variance B1 and B2. Would you consider the distribution to be normal? ठीक है, ये आपने इसमें बताना है। अब x इज इक्वल टू 10 प्लस 5u, x किसके इक्वल होता है, a प्लस एच यू के इक्वल होता है। अब यहाँ पे a क्या है, 10 है, और h कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और बाकी वैल्यूज आपको सम गिवन है। तो आपने सबसे पहले तो x बार फाइंड करना है, ठीक है। x बार फाइंड करना है और फिर x बार फाइंड आपके पास क्या आ रहा है, एफ यू के फार्मूले से 8.2 आ रहा है, ठीक है। फिर आपने M2 फाइंड करना है जो कि इक्वल है वेरिएंस के सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है। अब सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन आपने किस से फाइंड करना है, रिलेशनशिप के फार्मूले से, ठीक है। आपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन फाइंड करनी है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप के फार्मूला से मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो इक्वल टू वेरिएंस होता है, जो कि आपके पास उसकी वैल्यू आ रही 57.96। उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करना था ना, B1
B1 आपके पास किसके इक्वल है, m3 स्क्वेयर ओवर m2 क्यूब। ठीक है, थर्ड मोमेंट आपके पास क्या है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 76.8 76.816, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और आपके पास m2 सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है 57.96, इसका क्यूब ले लेंगे, तो आपके पास B1 जो कि 0.03 यानी 0 आ रहा है तकरीबन, और B2 जो है आपके पास आ रही है 0 से थोड़ा सा ऊपर है, B2 आपके पास आ रहा है m4 डिवाइडेड बाई m2 स्क्वायर, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन का स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास B2 की वैल्यू 2.74 आ रही है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल। अगर 3 होता तो फिर हम कहते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। 4.21 Part B. The first three moments of a distribution about the value 2 of the variable are 1, 16 and minus 40. Show that the mean is 3, the variance is 15 and m3 is minus 86. ये पेपर में आ चुके हैं इस तरह के जो है क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, here m1 prime is equal to 1, m2 prime is equal to 16 and m3 prime is equal to minus 40। तो आपने क्या बताना है, आपने एक तो मीन के जो कि इक्वल टू 3 उसने का आना चाहिए, और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस आपने बताना है जो कि वो कह रहा है कि 15 आ रहा है, और m3 जो है वो माइनस 86 आ रहा है। अब आपने ये फाइंड करने हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन आर गिवन एज m1 इज इक्वल टू 0, m2 जो है वो किसके इक्वल होता है, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम, तो m2 प्राइम की वैल्यू 16 है, माइनस m1 है 1, उसका स्क्वायर लेंगे तो 16 माइनस 1 15 आ गया, जो कि उसने बताया हुआ है, जो कि वेरिएंस के इक्वल है। अब m3 उसने कहा माइनस 86 आता है, तो m3 किसके इक्वल होता है, m3 प्राइम माइनस m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2 m1 प्राइम रेज़ टू पावर 3। इसमें आपने ये जो वैल्यूज आपको गिवन है इसमें पुट की तो माइनस 86 आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए हुए हैं। सी पार्ट है द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 आर 1, 4 एंड 10। इज द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। आल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसमें आपने सिमेट्री बतानी है कि सिमेट्रिकल है या पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, ये आपने बताना है, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी साथ फाइंड करना है। आ गई समझ। अब इसमें आपने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 है, यानी a आपके पास 4 है, और यहाँ पे m1 प्राइम आपके पास क्या है 1 है, और m2 प्राइम जो है वो आपके पास 4 है, और m3 प्राइम आपके पास 10 है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब मोमेंट अबाउट मीन आपने फाइंड करनी है। m1 तो 0 होता है, m2 जो है वो किसके इक्वल होता है, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वेरिएंस 3 आ रहा है। m3 जो है वो उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है m3 के फार्मूले में, तो आपके पास वो वैल्यू 0 आ रही है m3। अब b1 जो है ये हम सिमेट्री को देखने के लिए b1 या बीटा 1 कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला है m3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 क्यूब। अब m3 हमारे पास 0 है, तो b1 हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम जब b1 0 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ठीक है, ये भी आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से 4.22 इसका ए पार्ट है। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 2 आर 1, 2.5, 5.5 एंड 16। कैलकुलेट द मीन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, द मोमेंट अबाउट द मीन। ठीक है, आपने जो है ये नेक्स्ट फाइंड करने हैं। ये आपने क्वेश्चन फाइंड करना है 4.22 का ए पार्ट, जो भी मैं बता चुकी हूँ। इसमें आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है, मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, द मोमेंट अबाउट द मीन, ये भी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट आपको गिवन है m1 प्राइम, आपके a जो है वो आपके पास 2 है, m1 प्राइम की वैल्यू गिवन है आपको जो कि 1 है, m2 प्राइम इज 2.5 एंड m3 प्राइम इज इक्वल टू 5.5 एंड m4 प्राइम इज इक्वल टू 16।
अब आपने फर्स्ट मीन फाइंड करना है। अब आपको पता है, पीछे मैं बता चुकी हूँ, मीन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन होता है, जो कि इक्वल टू एम वन प्राइम है समेशन डी ओवर एन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एम वन प्राइम। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास 2 है और एम वन प्राइम की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास एक्स बार आ जाएगा 3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपने M2 फाइंड करना है। कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन के लिए आपको जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए। M2 मीन आपके पास इसके M2 जो है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ये आपका वेरिएंस के इक्वल होता है। इसमें आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास M2 आ गया 1.5 जो कि एस स्क्वायर है, और इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। फिर उससे आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जो है ये मैंने यहाँ किया हुआ है, लेकिन आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करनी है। आपने इसको करना है, खुद भी करना है इसको। ठीक है, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स अबाउट द वैल्यूज 3 आर -2, 10, -25 एंड 50। डिटरमिन द मोमेंट्स अबाउट द मीन। मोमेंट्स अबाउट मीन जो है वो आपने फाइंड करने हैं। अब m1 जो है वो आपके पास 0 होता है, और m2 जो है m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम के इक्वल होता है, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे m2 आ जाएगा। इसी तरह से m3 का फार्मूला लिखेंगे, उसमें आपको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन है, उनके वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास m3 आ जाएगा, और इसी तरह से m4 भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.22, यही क्वेश्चन है और इसका डी पार्ट है। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 4 आर 1, 4, 10 एंड 45। डिस्कस द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी आपने सिमेट्री देखने के लिए B1 फाइंड करते हैं। ठीक है, B1 आपने कैलकुलेट करना है। आपको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन गिवन है, जैसे M1 है, M1 प्राइम 1 है, M2 प्राइम 4 है, M3 प्राइम 10 है और M4 प्राइम की वैल्यू 45 है। इससे आपने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर लेने हैं और B1 के फार्मूले में आपने पुट करना है। तो देखें ये B1 आपका 0 आ रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन इज symmetrical. Students, this is your today's home task. Question number 4.20, question number 4.22 part C, and question number 4.26, question number 4.27 part A and B. Solve these questions and send in the subject group.